Hello friends, let's see product life cycle in today's session. So let's see the definition of a product life cycle. The product life cycle is an important concept in marketing. It describes the stages a product goes through from when it was first thought of until it finally is removed from the market. Not all products reach this final stage. Some continue to grow and other rise and fall. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये अ, 4 फेसेस को बताता है जो हर एक प्रोडक्ट की एक लाइफ उसी में से जाती है। ये हर एक प्रोडक्ट जो भी कंपनी मार्केट में रिलीज़ करती है, लॉन्च करती है, तो वो उस प्रोडक्ट को 4 फेसेस में से जाना ही पड़ता है। उन 4 फेसेस को हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस फेसेस वी कैन टेक बीइंग एन marketeer, we can take some strategic decision to make our product's life uh, more extended, or with the help of some strategic decision we can extend the life of our product in the market. So let's see this. So this is the graph of product life cycle. This is sales and this is the time. So whenever company firstly introduce their product in the market, that stage is called as introduction stage. So here company introduces their product in the market, and people now getting aware of that product. After that, your product, a company's product, go to a second phase that is called growth phase. So growth phase is a second phase where your product is rocking the market, and you are earning a lot of profit, fast profit from the market. And after growth, your product go to third phase that is called maturity. Here your product is doing good in the market, but your sale is stable, it which is not growing so fast. Okay, so after this, what happens is people actually not willing to buy that product. Okay, your product. So that is why after maturity, fourth phase comes, which is very well known as decline. Means people are not accepting your product, they are not buying your product. That is why your sales is going drastically down, and your product may go out of market. So that is why we have to see all these four phases, and once you come to know about all these four phases, then only you can be able to introduce some new strategies which can help your product to extend in the life, in its life. So uh, let's see the stages. What are the main stages of the product life cycle? The main stages of the product life cycle are research and development. Researching and developing a product before it is made available for sale in the market. Yes, before introduction of any product, company conducts some research, and after conducting that research, company develop that product. Because with the help of research, company comes to know about the need, requirement, wants of the customers, and when they get this information from the market through research, then only company can be able to develop new product according to the requirement or want or need of the customer. Then company introduces that product in the market for the first time. That stage is called as introduction, launching the product into the market. Second phase, growth, when sales are increasing at their fastest rate. Third one is maturity. Sales are near their heights, but the rate of growth is showing down. Maybe new competitors in the market, or saturation. Saturation means now people are completely saturated with the with XYZ product, and now people are not willing to buy that product. That is called saturation, where your product gets saturated, people stop buying it. And next stage is decline, final stage of the cycle, when sales begin to fall. Yes, sales start falling down,
That is why your product may go out of the market. So let's see introduction stage. Once a product has been developed, the first stage is its introduction stage. In this stage, the product is being released into the market. अब इस स्टेज में फॉर एग्जांपल चलिए अभी ये सारे स्टेजेस को हम लोग किसी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट के साथ में मैच करवाते हैं या तो फिर उसको एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं और उसको हम लोग उस पर वर्कआउट करते हैं, मतलब इसके थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कंपनी है, वो अगर अपना एक स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करती है, ठीक है, तो काफ़ी सारा रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद में कंपनी अपना स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करती है, जिसमें वो काफ़ी अच्छा कैमरा देती है, स्पेस देता है, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आजकल के मोबाइल में होता है वो सारी चीज़ें उसमें वो वो ये सारा कॉन्फ़िगर करता है और उसके बाद में वो कंपनी जो है अपना नया मोबाइल फ़ोन मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है। तो अब इस स्टेज में एडवर्टाइज़मेंट वगैरह ये सारी चीज़ें करने के बाद में जब लोगों को पता चलता है कि मार्केट में एक कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, तब लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। पीपल विल कम टू नो अबाउट दैट प्रोडक्ट एंड that advertisement or that information, that type of awareness actually create interest among the potential buyer. And then finally what happens is people start buying your product, and when people start buying that product is called second stage, that is called growth stage. By the growth stage, consumers are already taking to the product and increasingly buying it. The product concept is proven and it is becoming more popular and sales are increasing. जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि किसी कंपनी ने मोबाइल फ़ोन मार्केट में लॉन्च किया है, उसको लॉन्च करने के बाद में जब लोगों में इंटरेस्ट पैदा होता है, तो लोग काफ़ी सारे लोग उसको परचेस करना स्टार्ट कर देते हैं। जब लोगों में उसका एक क्रेज़ बन जाता है, पीपल स्टार्ट लविंग दैट प्रोडक्ट, पीपल स्टार्ट यूजिंग दैट प्रोडक्ट, पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट प्रोडक्ट, दे आर विलिंग टू यूज़ इट। So that is why what happens is automatically your growth, your sales automatically grows, accelerate your sale, because people are buying and buying that product, and that is why your sales accelerate very faster, and you get very well known in the market. And after this stage, after growth stage, we go to next stage, maturity stage. When a product reaches maturity, its sales tend to slow or even stop, signaling a largely saturated market. At this point, sales can even start to drop. Pricing at this stage can tend to get competitive, signaling margin shrinking as price begins falling due to the weight of outside pressure like competition or lower demand. Once your mobile phone is rocking the market, means generating a lot of sales revenue. So after that, a certain time period, after a certain time of period, maturity stage comes. In this stage, what happens is your sale is automatically slow down. Then people even may stop buying your product. Then your sale is actually drastically going down. So in this case what happens is now people are completely saturated with that product, because what happens is many people have already buy that product, and after that what happens is uh, people start thinking about something new. Okay, so people always, not people, customer always look for the new innovative things, innovative concepts in the existing product. So what happens is the demand automatically goes down, means lower demand may arise, and sometimes what happens is competition may arise, because product like your product, some other companies can introduce same product but with a different kind of innovative ideas, means new innovation may be there in that product. So that is why people start thinking about that
another product. So because of this, your sale automatically goes down. That is called maturity stage. Means people are not so much willing to buy your product as it was. Then your product go to decline stage. Although companies will generally attempt to keep the product alive in the maturity stage as long as possible, decline for every product is unavoidable. Yes, decline phase is completely unavoidable because every product has its own life. After certain time, or after some time, people start refusing it, or stop buying that product. So that is why what happens is companies are always think at maturity stage about the extension of life of uh, that existing product. So in decline stage, what happens is your sale is completely stopped, or sales drop significantly, and consumer behavior changes as there is a less demand for the product. The company's product loses more and more market share, and competition tend to cause sale to deteriorate. यहाँ पर होता ऐसा है कि थर्ड स्टेज के बाद में, मैच्योरिटी स्टेज के बाद में आती है डिक्लाइन स्टेज, क्योंकि लोगों में, कस्टमर्स में अब आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं रही। आपके कस्टमर्स जो है प्रोडक्ट को परचेस करना नहीं चाहते हैं, जिसके वजह से आपका प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो सकता है, या तो आउट होने जाता है, या तो आउट हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज। अभी इन सारी चारों चारों स्टेजेस में से हर एक प्रोडक्ट मार्केट से मतलब हर एक प्रोडक्ट मार्केट में इन चारों फेसेस से जाता ही है, गुजरता ही है। ठीक है, लेकिन अभी बीइंग मार्केटियर, यू पीपल you people need to think something about strategies, how we can implement or design strategies which may help in extension of the life of that product. सो यहाँ पर दिमाग लगाया जाता है मार्केटियर्स का। तो यहाँ पर मार्केटिंग वाले अपना स्ट्रैटेजीज लगाते हैं, दिमाग चलाते हैं, और प्रोडक्ट को फिर से जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की तरीके से अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर कुछ क्लासिकल एग्जांपल्स मैंने स्क्रीन पर रखे हैं। जैसे कि पहला है टाइपराइटर। टाइपराइटर की अगर हम लोग बात करें, तो ये भी प्रोडक्ट अपने चारों फेसेस में से चला गया है। वीसीआर भी उसी तरीके से, और पेजर भी इसी तरीके से मार्केट से गया था। जैसे कि अगर हम लोग टाइपराइटर की हम लोग बात करते हैं कि व्हेन पीपल कंपनीज इंट्रोड्यूस्ड टाइपराइटर इन द मार्केट, तो उस समय लोगों को इस टाइपराइटर ने इतना अपील किया, इतना अट्रैक्ट किया, कि लोग अपने कामों के लिए अपने ऑफिसेस में हर एक जगह पर, मतलब जहाँ पर ऑफिशियल वर्क होता था या तो पर्सनल वर्क होता था, जहाँ पर टाइपिंग इन्वॉल्व होता था, तो लोग टाइपराइटर को प्रीफर करते थे। क्योंकि खराब हैंड राइटिंग से अच्छा है कि टाइप रिटन अगर वर्ड होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए लोगों ने फिर टाइपराइटर को यूज़ करना स्टार्ट किया। तो टाइपराइटर जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसने काफ़ी अच्छा मार्केट में परफॉर्म किया। उसके बाद में वो उसने काफ़ी अच्छे से ग्रोथ किया। ग्रोथ करने के बाद में वो मैच्योरिटी लेवल पे गया, और उसके बाद में वो डिक्लाइन हुआ। अभी इन चारों के चारों स्टेजेस में से ये प्रोडक्ट गुजरा। अगर उसी समय टाइप राइटिंग या तो टाइप राइटर मैन्युफैक्चरर्स ने अगर एक्सटेंशन अगर देने के लिए कुछ और किया होता, जैसे कि नए कुछ इसमें ओएस अगर दिए जाते, या तो फिर इसमें कुछ और अलग फंक्शन दिया जाता, तो शायद हो सकता था कि उस प्रोडक्ट की लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो सकती थी। लेकिन एक्सटेंड हो सकती थी, लेकिन ऐसा टाइपराइटर ने नहीं किया, इसलिए वो मार्केट से कंप्लीटली आउट हो गया। वीसीआर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वीसीआर जब मार्केट में नया आया था, तो उसने भी ऐसा ही मार्केट को पूरा हिला डाला था। इंट्रोडक्शन के बाद में वो काफ़ी मार्केट इसका ग्रो हुआ, काफ़ी सारी कंपनीज ने काफ़ी तगड़ा सेल्स किया और काफ़ी सारा पैसा जनरेट किया। लेकिन उसके बाद में फेस आया मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के बाद में डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन वो इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नए-नए कॉम्पिटिटर्स आए, जिन्होंने डीवीडीज़, वीसीडीज़ वगैरह ऐसे कुछ जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स थे वो लॉन्च किए, जिसकी वजह से लोग उसको ज़्यादा प्रेफ़र करना शुरू कर चुके थे। एंड दैट इज़ व्हाई वीसीआर कंप्लीटली गॉट आउट ऑफ द मार्केट।
क्योंकि कस्टमर्स जो है आज का, वो हमेशा टेक्नोलॉजी में, आपने कोई भी प्रोडक्ट में हमेशा नया नया इनोवेशन चाहता है. Customers are very much conscious about innovative concepts in that product or ideas in the existing product. That is why what happened, due to DVDs, VCDs, this VCR got completely out of the market. And उसके बाद में, after that we will see that pager ये एक ऐसा कंसेप्ट मार्केट में लॉन्च हुआ था जो कम्युनिकेशन के लिए लोग यूज़ किया करते थे. लेट 90s में ये पेजर ने काफ़ी मार्केट में धूम मचाई थी. ये एक रेपुटेशन वाला हिस्सा होता था कि अगर किसी बंदे के पास में ये पेजर अगर होता था तो ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत बिजी बंदा दिखता है. ये यूज़ किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए. ये इसके छोटे स्क्रीन पे हमेशा मैसेजेस आया करते थे, जिसको हम लोग आज के डेट में एसएमएस बोलते हैं. तो यहाँ पर with the help of this pager people used to communicate with the person who is not near to you. अब इसके लिए होता ऐसा था कि कस्टमर ने, मतलब जो जो भी बंदा है, जो मैसेंजर है, जिसको अगर मैसेज पहुंचाना है उस बंदे तक, XYZ किसी बंदे के पास, तो उस बंदे ने कॉल करना रहता था कॉल सेंटर पे. कॉल सेंटर वो मैसेज राइट करता था और उसके बाद में वो शूट करता था उस पेजर पे, और वो मैसेज मिलता था उस बंदे को जिसके साथ में आपको कम्युनिकेट करना पड़ता था. लेकिन अभी ये भी पेजर उन चारों के चारों फेजेस में गया और फाइनली ये डिक्लाइन हो गया. अब डिक्लाइन वो इसलिए हुआ क्योंकि जब पेजर चल रहा था उसी समय नोकिया के काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन मार्केट में आ चुके थे. उसके बाद में फिर से मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट मैसेजिंग सिस्टम वगैरह वो सारी चीज़ें मार्केट में आने लगी, जिसके वजह से पेजर जो है वो पुराना होने लगा. लोग अभी डायरेक्ट कॉल करने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे. नो नीड टू कॉल टू someone else and then shoot that message through that XYZ customer care to that particular person where I wanted to deliver that message. So what happened, due to mobile phones and cell phones, pager got completely eliminated from the market. तो ये थे कुछ एक क्लासिक एग्जांपल्स जो आज भी क्लासिक बन चुके हैं. सो आफ्टर दिस वी विल सी द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल in this chapter. Extending the product life cycle, it means it is actually self-explanatory. uh, with the help of some strategies we can extend the life of the existing product. For successful products, a business will want to do all it can to extend the growth and maturity phases of the life cycle and to delay the decline phase. You cannot avoid decline phase, you cannot avoid maturity phase, but you can delay the decline phase. This is what you can do with the help of some strategies. उसको हम लोग बोलते हैं extending the product life cycle, or some strategies which can extend the life of your product in the market. What can business do to extend the product life cycle? To do so, it may decide to implement extension strategies which are intended to extend the life of the product before it goes into a decline. Yes, there are certain strategies uh, we are going to see further. With the help of those strategies, you can extend the life of your product in the market. So let's see some strategies. Extension strategies: advertising, price reduction, adding value, explore new markets, new packaging. So let's see advertising. Advertising try to gain a new audience or remind the current audience. Advertisement ये एक ऐसा कम्युनिकेशन टूल है जो बहुत लार्ज और मास को एड्रेस करता है. With the help of advertisement, you can create strong awareness amongst the potential buyer. You can generate interest uh, in the customer's mind, or you can create positioning in the mind of the customer. That is why advertising can be the effective tool which can help in the extension of the product life cycle. So
with the help of more and more advertisement you can gain new audiences definitely. ज़रूरी नहीं है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट सबने देखी हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब आप एडवर्टाइजमेंट रन करते हो तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते हैं या तो बहुत रेयर टाइम में वो एडवर्टाइजमेंट देख पाते हैं। तो हो सकता है उस समय आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट उन्होंने नहीं देखी हो। तो बार-बार एडवर्टाइज़मेंट देने की वजह से ऐसे भी कस्टमर्स को हम लोग टैप कर सकते हैं और उनमें आपके प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपका सेल बढ़ सकता है। और तो और कंटिन्यूअस एडवर्टाइज़मेंट की वजह से, कंटिन्यूअस हैमरिंग की वजह से आपके जो करंट ऑडियंस है, उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में रिमाइंड किया जा सकता है और जिसकी वजह से कस्टमर फिर से सोचने लगता है, उसको रिमाइंड होने लगता है कि हाँ, ऐसा भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में है जो हम लोग परचेज़ कर सकते हैं। अब ये जो स्ट्रैटेजीज़ है, बहुत सारी कंपनीज़ हमेशा इम्प्लीमेंट करती हैं। जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं लाइफ़बॉय सोप हो, इतना पुराना सोप है लेकिन आज भी मार्केट में ये सोप काफ़ी अच्छे से मार्केट में सेल जनरेट कर पा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत पुराने हैं बट स्टिल दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल इन द मार्केट एज़ फार एज़ सेल्स इज़ कंसर्न्ड। So advertisement always helps us in the extension of the product life cycle. Next one is price reduction. More attractive customers. Yes, price is the factor which is more and more attractive to the customers. Because of discounts, heavy discounts or sale or price drop, customer automatically get attracted towards that product and at least they can think to buy about it once. So what happens is with the help of this discount or price reduction strategy, you can sell your product in large quantity in the market. That is why what happens is you can again delay the decline phase of that product and you can extend the life of the existing product. So this is the another price extension strategy which is called price reduction. After that, the third strategy would be extension strategy is adding value. Add new features to the current product. जैसे कि जब आपका कोई प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है, उसको उसको अगर मार्केट में लाइफ एक्सटेंड करनी, उसकी लाइफ अगर मार्केट में एक्सटेंड करनी है, तो उस समय हम लोगों को उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसमें कुछ फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे, उसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि हर एक कंपनी आज के डेट में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स जितने भी हैं, वो हमेशा क्या कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन सब लोग यूज़ कर रहे हैं। एवरीवन इज़ यूजिंग मोबाइल फ़ोन, सबके पास में है। बट स्टिल आफ्टर 2 months, 3 months, people are buying another mobile phone. Why? Because of continuous value which is being added to the existing mobile phone. कुछ ना कुछ नया फीचर मोबाइल फ़ोन में ऐड होता है जिसकी वजह से लोग अपना पुराना फ़ोन छोड़ के नया फ़ोन खरीदते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एडिंग वैल्यू। जब आप आपके प्रोडक्ट में वैल्यूज़ ऐड करते हैं तो कस्टमर्स में इंटरेस्ट फिर से जनरेट होता है एंड कस्टमर थिंक टू बाय योर प्रोडक्ट। अब एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर दो पिक्चर्स लगाए हैं। यहाँ पर ये एक मोबाइल फ़ोन है एक्स वाई जी जो भी होगा। इसका मेगापिक्सल जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल है। उसके बाद में मतलब कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है। उसके बाद में फिर से उसमें गोरिल्ला ग्लास है। उसकी बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है और उसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। ठीक है? बाकी तो सारे फीचर्स उन्होंने इसमें लिखे हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि हो सकता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अभी सैचुरेट हो चुका है होगा या तो हो सकता है कि पीपल नाउ स्टॉप बाइंग दिस प्रोडक्ट। दैट इज़ व्हाई व्हाट हैपेंस इज़ टू uh, extend life of this product, company thinks to add new features in that product. Okay, तो फिर कंपनी क्या करती है, अपने उसी प्रोडक्ट को फिर से थोड़ा सा उसको रिफाइन करने के बाद में उसको उसमें थोड़े से इम्प्रूवमेंट करती है, कुछ स्पेसिफिकेशंस ऐड करते हैं और उसके बाद में प्रोडक्ट को फिर से लॉन्च करते हैं। लेकिन कभी कभार कंपनी क्या करती है, बेचना तो मोबाइल फ़ोन ही है, तो थोड़ा सा कुछ नाम बदल के या तो वर्जन चेंज करके उसको मार्केट में लॉन्च कर देती है और जिसकी वजह से उसका जो
डिक्लाइन फेस होता है वो फिर से डिले हो जाता है और आपके प्रोडक्ट के लिए फिर से नए बायर्स मिल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं एडिंग वैल्यू स्ट्रेटेजी। इसके बाद में एक्सप्लोर न्यू मार्केट हम लोग देखते हैं। मतलब ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। इसमें इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि कंपनी जिस मार्केट में परफॉर्म कर रही है उस मार्केट में अगर हम लोग मैच्योरिटी के बाद में डिक्लाइन फेज की तरफ अगर जा रहे हैं तो कंपनी सोचती है कि क्यों ना हम लोग किसी और मार्केट में ट्राई करें, क्यों ना हम लोग किसी और मार्केट में जाए और वहाँ पर अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें और वहाँ पे फिर से इंट्रोडक्शन फेज से स्टार्ट करें। तो इस तरीके से कंपनी ये एक स्ट्रेटेजी फॉलो करती है। In this strategy, companies always look forward for new market. Companies always try to push the boundaries, जिसके वजह से वो फिर से मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही किसी अलग मार्केट में नए से इंट्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पर वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इंजॉय करने के बाद में फिर से वो नए मार्केट को हंट करते हैं, नए मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और जिस तरीके से आप लोग आपका प्रोडक्ट की लाइफ जो होती है वो एक्सटेंड कर पाते हैं। तो ये हो गई कुछ स्ट्रैटेजीज जो आपके प्रोडक्ट को अलाइव रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। these are some strategies which always helps you to make your product successful in the market। उसके बाद में और एक स्ट्रैटेजी हम लोग देखते हैं जिसको बोलते हैं न्यू पैकेजिंग स्ट्रैटेजी। मतलब कस्टमर्स मतलब ये हम लोगों ने काफ़ी बार सुना है या बोला भी होता है, जो दिखता है वही बिकता है। यस, दैट इज़ ट्रू। अब पैकेजिंग का रोल इसमें बहुत बड़ा होता है। पैकेजिंग ऑलवेज प्लेज रियली वेरी क्रूशियल रोल बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ पैकेजिंग कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट प्रोडक्ट एंड देन they start generating interest and then they take action of buying that product. So that is why packaging always plays crucial role in the market. So this is the one of the extension strategies which is called new packaging, brightening up old packaging और subtle change। तो अभी यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि लाइफ बॉय सोप जब काफ़ी साल पहले जब लाइफ बॉय मार्केट में आया था तब उसकी पैकेजिंग इस तरीके से थी जो काफ़ी टाइम तक चली। उसके बाद में लोगों के लिए ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली नया था, नई पैकेजिंग थी जिसकी वजह से लोगों को लगा कि यार चलो नया लाइफ बॉय है, हम लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने उसको परचेस किया। लेकिन वो ये भी प्रोडक्ट उन चारों के चारों फेसेस में से जाने लगा। तब फिर से HUL तब वो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड था, HLL था, अभी ये HUL है। So, after this, after the maturity phase of this existing Lifebuoy, company thought to extend the life of that Lifebuoy soap. Then company introduced new packaging again. Then what happened? Maybe with simple changes in the soap and the packaging. That is why customer again got attracted towards new Lifebuoy soap. अब नए पैक में ये ऐड करके भी ये वर्ड ऐड करके भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है। फिर से उन्होंने अपने प्रोडक्ट की लाइफ फिर से एक्सटेंड की मार्केट में। जब फिर से ये प्रोडक्ट उन चारों के चारों फेसेस में से जाने लगा, जैसे ही HLL को लगा कि क्यों ना हम लोग इस लाइफबॉय साबुन की फिर से लाइफ एक्सटेंड करें, तब उन्होंने फिर से नई पैकेजिंग मार्केट में लाई और कुछ छोटे मोटे उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाए और जिसके बाद में ये प्रोडक्ट फिर से मार्केट में लॉन्च हुआ। तब लोगों को लगा कि नया लाइफबॉय फिर से आया है और जिसकी वजह से लोगों ने इस लाइफबॉय को फिर से एक्सेप्ट किया। एंड after completing three phases, again company thought to extend life of existing Lifebuoy soap और उन्होंने फिर से एक नई पैकेजिंग मार्केट में लॉन्च की जिसमें उन्होंने कुछ नए फार्मूलाज थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स किए, जैसे कि सिल्वर शील्ड फार्मूला उसमें डाल दिया, पूरे चेंजेस कर दिए। उसके बाद में प्राइस रिडक्शन कर दिया क्योंकि बाय 4 गेट 1 फ्री ये तो डिस्काउंट ही हुआ लगभग। तो इसके वजह से ये ऐसे कुछ प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज एडवर्टाइजमेंट्स उन्होंने इम्प्लीमेंट की
ये स्ट्रैटेजीज उन्होंने अपनाई और उसके बाद में आज के डेट में भी आप देख सकते हैं कि लाइफबॉय साबुन काफ़ी अच्छे मार्केट में सेल्स जनरेट कर पा रहा है। तो इस तरीके से एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज आप लोग अपना सकते हैं आपके प्रोडक्ट की लाइफ अगर आपको मार्केट में फिर से बढ़ानी है तो after extension strategies you can see this product life cycle chart like this. So when you think about the extension strategies, then you actually delay decline phase, but you can start generating more profit again. तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है, इसलिए एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज को हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज वी कैन बी एबल टू रॉक द मार्केट अगेन। ओके, सो आफ्टर एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज द प्रोडक्ट इज रेडी टू रॉक द मार्केट। सो ये था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में, थोड़ा सा इजी तरीके से बताने की कोशिश की है। होपफुली यू पीपल हैव understood it. Thank you so much for patient listening and watching this. Thank you so much. Stay safe. Have a nice time ahead. Thank you.